چولستان ایک ایسا صحرائی خطہ ہے جس کے دامن میں ہزاروں سالوں کی یادیں محفوظ ہیں۔ صحرا کی موسیقی ہو یا ان کی ثقافت کے مختلف نمونے، ان سب میں ایک علیحدہ اور منفرد جھلک نظر آتی ہے، یا یوں کہیں کہ یہ خطہ تہذیب و تمدن کے ساتھ ساتھ فنی اور ثقافتی لحاظ سے بھی باقی خطوں سے منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں کے لوگوں نے بھی اپنی منفرد شناخت کی بنا پر صوبہ بہاولپور کا علم بلند کر رکھا ہے۔ بہاولپور صوبے کی بحالی ہونی چاہیے، کیونکہ سرائی کی تو پھر ایک ہی طرف ہو گئی نا ساری سرائی کی۔ اس میں بہاولپور میں تو ہر قسم کی قوم رہتی ہے، پنجابی بھی ہیں، مہاجر بھی ہیں، سرائکی بھی ہیں، یہاں پٹھان بھی رہتے ہیں اور دوسری قومیں بس رہی ہیں۔ یہ ایک اسٹیٹ بھی تھا اوپر سے، میں بھی یہی سپورٹ کروں گا اگر صوبہ بہاولپور بن جائے۔ جب یہاں پہ ہر چیز مطلب ایک صوبے کے لحاظ سے ہوگا تو جو بے روزگار لوگ ہیں ان کو روزگار کے زیادہ وسائل ہو جائیں گے۔ کم و بیش 27,000 مربع کلومیٹر پر پھیلا بہاولپور ڈویژن کا علاقہ 3 اضلاع بہاولپور، بہاول نگر اور رحیم یار خان پر مشتمل ہے۔ یہاں کی آبادی 80 لاکھ کے نزدیک ہے۔ بہاولپور کو صحرائے چولستان کی وجہ سے بھی ایک خاص مقام حاصل ہے۔ بہاولپور کی ریاست کم و بیش 250 سال قبل سندھ کے عباسی خاندان کی ایک شاخ نے قائم کی تھی، اور پھر مختلف ادوار میں عروج و زوال میں سے ہوتے ہوئے یہ ریاست انگریزی دور میں دیسی ریاست کے طور پر ایک نیم خود مختار حیثیت میں قائم رہی۔ قیام پاکستان کے وقت یہ بر صغیر کی دوسری بڑی ریاست تھی۔ قیام پاکستان کے وقت یہاں کے نواب نے پاکستان کے ساتھ الحاق کو ترجیح دی۔ چاروں صوبوں کو جو اب موجودہ پاکستان ہے اس کو مربوط رکھنے کے لیے بہاولپور ناگزیر تھا، چونکہ یہ ریلوے لائن اور ستلج برج یہ صرف مرکز انتصال یہی تھے۔ تاہم 1954 میں 1 یونٹ یعنی پورے مغربی پاکستان کو ایک صوبہ بنا دیا گیا تو ریاست بہاولپور بھی ایک معاہدے کے ذریعے اس بڑے صوبے میں ضم کر دی گئی، جس کے بعد اس ریاست کی قسمت کا ہمیشہ کے لیے فیصلہ ہو گیا۔ 1 یونٹ میں ضم ہونے سے قبل ریاست بہاولپور میں بھی سیاسی اصلاحات کا عمل شروع ہو چکا تھا، مگر 1 یونٹ کے خاتمے کے بعد ریاست بہاولپور کی پرانی حیثیت بحال کرنے کی بجائے اسے پنجاب کا ایک حصہ بنا دیا گیا اور یہ ایک ڈویژن بن گئی۔ بحالی تحریک صوبہ بہاولپور کا مقصد اور مطالبہ بھی یہی ہے کہ بہاولپور کی پرانی حیثیت کو بحال کیا جائے۔ موجودہ تحریک ویسے تو 1970 میں چلی تھی، مگر یہ راکھ میں دبی ایک چنگاری کی صورت میں رہی جب تک کہ 2 سال سے پہلے اسے ہوا نہ لگی۔ اب لوگ ہر سطح پر اس تحریک سے کوئی نہ کوئی تعلق جوڑ رہے ہیں، حتیٰ کہ بعض سیاسی جماعتیں بھی اس میں مصروف عمل ہیں۔ سرائی کی صوبہ بنانے والے بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، جنوبی پنجاب صوبہ بنانے والے بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور پھر بہاولپور صوبہ بھی بنانے والے ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک صوبہ وہاں پہ بنا دیا جائے جس کا نام کوئی زبان کی بنیاد پہ نہ ہو، صرف اس بنیاد پہ ہو کہ وسائل نزدیک پہنچ جائیں۔ جس طرح ہزارہ تحریک میں بھی ایک سے زیادہ گروپ اور جماعتیں متحرک ہیں، بالکل اسی طرح بہاولپور کی بحالی کی تحریک میں بھی کم از کم 3 گروپ مصروف عمل ہیں۔ ان میں سے ایک گروپ امیر بہاولپور نواب صلاح الدین عباسی کی سربراہی میں کام کر رہا ہے، مگر اس گروپ کے روح رواں سابق وزیر اطلاعات سینیٹر محمد علی درانی ہیں، جو احمد پور شرقیہ کے علاقہ نواب صاحب میں بہاولپور صوبے کی بحالی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ وہاں صوبائی حکومت قائم ہوئی جو 1955 تک قائم رہی، اس کی پروسیڈنگز ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں صوبائی اسمبلی کی۔ تو ایسی سچویشن میں آج ہم یہ کہیں کہ جی ہمیں اسٹیٹ بحال کرنی، دیٹس ناٹ دا کیس۔ ہمیں تو اپنا وہی سٹیٹس چاہیے جو 1955 سے پہلے تھا۔ دوسرے گروپ کی سربراہی مسلم لیگ فنکشنل کے لیڈر مخدوم احمد محمود کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ سابق ممبر صوبائی اسمبلی تابش الوری بھی شامل ہیں۔ اس گروپ کا نام کور کمیٹی برائے بحالی صوبہ بہاولپور ہے، اور جماعت اسلامی کی لیڈرشپ بھی اسی گروپ کے انتظامی ڈھانچے میں شامل ہے۔ یہ سلسلہ جو ہے صوبائی حیثیت ہمارا اپنا ہائی کورٹ، اپنا ریونیو بورڈ، اپنے پبلک سروس کمیشن، اپنے تمام صوبائی ادارے تھے جو یہاں فنکشن کر رہے تھے، کام کر رہے تھے۔ 55 میں حکومت نے فیصلہ کیا کہ جس طرح سے مشرقی پاکستان ایک صوبہ ہے، اس طرح مغربی پاکستان کو ایک صوبہ بنا دیا جائے۔ ان سب میں قدیم سیاسی گروپ جس نے تحریک کی صورت اختیار کی تھی وہ بہاولپور متحدہ محاذ ہے۔ اس کا آغاز 1 یونٹ کے خاتمے کے فوراً بعد ہو گیا تھا۔
उस वक्त मामून रशीद अब्बासी बहावलपुर के हुक्मरान ख़ानदान के एक फ़र्द इस तहरीक की सरबराही कर रहे थे। सन 70 की वो जो तहरीक है वो उसने फिर मार्शल्ला की खिलाफ वर्जी की। मार्शल्ला के ख़िलाफ़ जल्द से जुलूस और तहरीक शुरू हुई और आंसू गैस से लेकर और फिर फायरिंग तक और फिर शहादतों के मरहलों से ये तहरीक गुजरी। यहाँ तमाम पार्टियों का एक इजलास हुआ और उसमें बहावलपुर मुत्तहिदा महाज के नाम से एक प्लेटफार्म बनाया गया। वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी, उनकी कुर्बानियों को यारो साथ तो दे दो, उनको मान तो लो। बहालिए सूबा बहावलपुर की तहरीक की तारीख और उसकी माहियत जानने के लिए हम इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर आए हैं, जहाँ के शोबा तारीख के उस्ताद का कहना है कि बहालिए रियासत बहावलपुर नया नहीं बल्कि एक देरीना मुतालबा है। वज़ीर आला की हैसियत से एक चीज़ हमसे ले रहे हैं, हमारा वज़ीर आला है, हमारा अपना बजट है, हमारी असम्बली है, और आप हमें क्या कर रहे हैं, एक कमिश्नर की हैसियत से वापसी कर रहे हैं। यानी कौन सा तरीका है? मौरखीन के नज़दीक बहावलपुर माजी में भी एक खुशहाल रियासत थी, जहाँ तालीम, सेहत और दीगर सहूलतें बिल्कुल मुफ्त थीं, जबकि एक सूबे से डिवीज़न में तब्दील होने के बाद यहाँ के आवाम की महरूमियों में बेपनाह इजाफा हुआ है। कोई बड़ा काम होता है तो लाहौर जाना पड़ता है, कभी इस्लामाबाद जाना पड़ता है, वो हमारे काम इधर ही हो जाएंगे। सब चीज़ें पहले भी काफ़ी हैं और बाकी जो सहूलियात हैं वो इधर मिल जाएंगी हमें। हमारी महरूमिया का अजाला होना चाहिए बहावलपुर का, सूबाई हैसियत हमारी बहाल होनी चाहिए। बहालिए सूबा बहावलपुर की आवाज़ के साथ साथ यहाँ ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो बहालिए सूबा बहावलपुर के मुतालबे को एक बड़ी साजिश करार देते हैं। उनके नज़दीक बहालिए सूबा बहावलपुर की मौजूदा तहरीक सराकी सूबे की तहरीक को नुकसान पहुँचाने के लिए शुरू की गई है। एस्टेब्लिशमेंट की लाइन ये है कि एक तो सराकी खित्ते को भी अपना मरबूत सूबा नहीं मिलना चाहिए, यहाँ बहावलपुर सूबे को कार्व करना चाहते हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट का है, वो काटना चाहते हैं बहावलपुर को, क्योंकि बहावलपुर कमज़ोर तहरीक है वहाँ सियासी, उनको हड़प कर जाएंगे, वो पंजाब वाले हुक्मरानी करेंगे। उनके नज़दीक बहावलपुर, मुल्तान और डेरा गाजी खान की डिवीज़नों में बसने वाले जनूबी पंजाब के बासी अलग जहन और सकाफत रखते हैं, इसलिए उनकी अलग पहचान की बिना पर सूबा देना चाहिए। ताज मोहम्मद लंगा कहते हैं कि जनूबी पंजाब में वडेरा शाही, गुर्बत और पसमानदगी सब तख्ते लाहौर की मरहून मिन्नत हैं। नवाज शरीफ साहब कहते हैं बहावलपुर सूबा होना चाहिए, हज़ारा होना चाहिए, सराकी नहीं होना चाहिए। एक ये सेनेट की सीटों का झगड़ा है और वो सिंध MQM कहती है हमें सूबा नहीं चाहिए। अल्ताफ़ हुसैन ने मुझे सैकड़ों मरतबा कहा भाई मैं सिंधी हूँ, मैं सिंध की तकसीम नहीं चाहता, ये कहते हैं सिंध तकसीम होना चाहिए। बाद सियासी जमातें जहां एक दूसरे से बढ़कर सूबों की हमायत में बयान दाग रही हैं, वहां उनकी मकामी लीडरशिप भी अपने अपने अंदाज से मुख्तलिफ तहरीकों में किरदार अदा कर रही है। पूरा एक प्रोविंस चाहते हैं, जिस तरह बाकी 4 सूबे हैं या जिस तरह भी उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को एक सूबे की हैसियत दी है, हम चाहते हैं कि अब हमें रियासत नहीं, हमें एक सूबा चाहिए, प्रोविंस चाहिए। कुछ सियासी जमातों के नज़दीक नए सूबों की तहरीकों के जरिए पाकिस्तान को दरपेश दीगर मसाइल, ख़ास तौर पर सिक्योरिटी से नज़रें चुराई जा रही हैं। इसी वजह से इस तरह की तहरीकों के लिए ये मुनासिब वक्त भी नहीं है। अभी फ़िलहाल तकसीम करने का वक्त नहीं आया, इस वक्त मुल्क को यूनिटी चाहिए। सूबा खैबर पख्तूनख्वा बन सकता है तो और भी सूबे बन सकते हैं। सराइकी सूबा का कोई नाम ले रहा है, कोई सूबे हज़ारा का नाम ले रहा है, कोई बहावलपुर सूबा का नाम ले रहा है, कोई कराची का नाम ले रहा है, कोई किसी सूबे का नाम ले रहा है। सूबे बनाने में कोई अमर माने नहीं है, लेकिन सूबे इस तरह नहीं बनाने चाहिए जिस तरह हम एजिटेशन के ज़रिए, एहतजाज के ज़रिए या सियासी मकासद पूरे करने के लिए सूबे बना रहे हैं। अगर ये सिर्फ एक ज़िद है, जैसे एक बच्चे से खिलौना लेकर है कोई ज़िद में दूसरे बच्चे से कि हमने उस बंदे से ये बात मनवानी है, तो अगर ये ऐसी बात है फिर तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, ऐसा ही ठीक है, जो जैसे भुगत रहा है उसे भुगतने दें। अगर वाकई कोई सिंसियर है या सीरियस है और वाकई कुछ करना चाहता है तो फिर अलग बना दिया जाए तो ज़्यादा बेस्ट होगा। पहले बजट इतनी शॉर्टेज हमारे पास है ही नहीं, तो हम और सूबा बना के क्या करेंगे। पाकिस्तान में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो ये समझते हैं कि पंजाब आबादी के लिहाज से चूँकि दूसरे सूबों से बड़ा है, लिहाजा तवाज़ुन कायम रखने के लिए ज़रूरी है कि इसको नए इंतज़ामी यूनिटों में तहलील किया जाए। इसी तरह ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जो पाकिस्तान में आइंदा 10 सालों में कम अज़ कम 7 नए सूबे बनते देखते हैं। ऐसे सूबे जो आइनी और कानूनी तकाज़ों के मुताबिक हों,
चाहे वो लिसानी बुनियादों पर हों या नस्ली या फिर सिर्फ इंतज़ामी बुनियादों पर। 18वीं तरमीम के बाद अब नए सूबे बनना एक इंतहाई फितरी और ज़रूरी अमर बन चुका है, क्योंकि जितने अख्तियारात आपने सूबों को दे दिए वो अख्तियारात अगर सूबाई हेडक्वार्टर्स तक रह गए तो फिर अवाम के अंदर इतना ज़्यादा रिएक्शन पैदा होगा कि जिसकी कोई हद नहीं है। इंतज़ामी तौर पर नए सूबों की ज़रूरत है, जिसमें हज़ारा भी शामिल है, जिसमें फाटा भी शामिल है, जिसमें जनूबी वज़ीरिस्तान भी शामिल है, जिसमें बलूचिस्तान भी शामिल है। तो उनको अब आप बड़े यूनिट और विफाक का भी हमने तजर्बा करके देख लिया, वहदत मगरबी पाकिस्तान का भी तजर्बा करके देख लिया, अब हमें छोटे सूबों का तजर्बा करना है। बहुत से माहिरीन के नज़दीक पाकिस्तान को इंतज़ामी यूनिटों में तकसीम करने से विफाक मजबूत होगा और पाकिस्तान फले फूलेगा, नफ़रतें कम होंगी और मोहब्बतों के फूल खिलेंगे। मगर ये कैसे होगा? कोई इंतज़ामी हुक्मनामा काफ़ी होगा या आइन का सहारा लिया जाएगा? 3 सूबा एक तरफ, पंजाब सूबा एक तरफ, 3 सूबा एक फैसला करे, पंजाब एक फैसला करे, ठीक है ना जी। अगर वो समझते हैं कि मतलब सराइकी वाले, और मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान के सबसे खूबसूरत और मीठा ज़बान सराइकी वालों का है, अगर उनका डिमांड है, उनका हक बनता है तो उनको मिलना चाहिए। हम हुकूमतों की तरफ देख रहे हैं, अमन की खातर ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। अगर हुकूमतें हमें सूबा नहीं देंगी, सूबाई या मरकज़ी, तो हज़ारे के बेटे अपना सूबा खुद हासिल कर लेंगे और हम चाहते हैं कि उस स्टेज तक हमें ना ले जाया जाए। 62% आबादी वाले सूबे को अगर एक सूबा और फ्राहम कर देंगे आप, तो क्या अमर माने हैं? ये तो सारे वेस्टर्न इंटरेस्ट की बातें हैं, इसमें कोई अमर माने नहीं होना चाहिए। लेकिन जब भी फैसला हो वो बड़ा मुस्तनद किस्म का फ़ैसला हो, उसकी बुनियाद जो है वो इलाकाई तसब पे ना हो और वेस्टेड इंटरेस्ट पे ना हो। एक बात तो तय है कि नए सूबों के क़याम से कम मुकामी सतह की क़यादत ज़रूर सामने आती है, जिन तक आवाम की रसाई भी कदरे आसान होती है। हम ये तो नहीं बता सकते कि पाकिस्तान में आइंदा चंद बरसों में कितने सूबे होंगे और कौन कौन सी तहरीक कामयाब होगी, मगर हक़ाइक़ बताते हैं कि इनमें इजाफा ज़रूर होगा। जैसा कि मौजूदा तहरीकों के ज़ेरे असर सतह मुर्तफ़ा पोठोहार समेत सिंध और बलूचिस्तान में भी ये चिंगारी पनपने लगी है।